اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک دل دہلا دینے والا واقعہ سنائیں گے کہ آخر یہ 3 لڑکیاں قطعی کیوں بن گئیں، ان پر اللہ پاک کا اتنا دردناک عذاب کیوں نازل ہوا، وہ ایسا کون سا گناہ کرتی تھیں جس کی وجہ سے ان پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا۔ یہ واقعہ خاص عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، اسی لیے گزارش ہے کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے واقعے کو مکمل ضرور سنیے گا۔ کسی گاؤں میں ایک اللہ والے رہا کرتے تھے، ان کی ایک ہی بہن تھی، وہ بھی انہی کی طرح عبادت گزار تھی۔ وہ اللہ والے کسی دوسرے گاؤں میں رہتے تھے اور وہ اللہ والے اپنی بہن سے کبھی کبھار ملنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ وہ اللہ والے بزرگ اپنی بہن سے ملنے کے لیے نہ جا سکے اور ان کی بہن کے 3 بیٹے تھے۔ اس نیک عورت نے اپنے تینوں بیٹوں کی شادیاں کر دی تھیں۔ اس کی ایک بہو 3 گاؤں میں بہت ہی چالاک اور ہوشیار تھی۔ جب بھی وہ نیک عورت اپنے کمرے میں بیٹھ کر نماز اور قرآن پاک کی عبادت کرتی، وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ اللہ کرتی رہتی ہے اور بیٹھی روٹیاں توڑتی رہتی ہے۔ وہ نیک عورت گھر کے کام بھی کر دیا کرتی تھی۔ اکثر اس کے دروازے پر کوئی بھی بھیک مانگنے والا بھکاری آتا یا مسکین آتا تو وہ کبھی بھی اس کو بھوکا نہیں لوٹاتی تھی، وہ ہمیشہ ہی صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی۔ وہ نیک خاتون اپنے پڑوسیوں کا بھی بہت خیال کیا کرتی تھی۔ وہ اپنی بہوؤں سے کہتی کہ بیٹا آج کھانا زیادہ بنا دینا، مجھے اپنے پڑوسیوں کو بھی دینا ہوتا ہے۔ وہ نیک عورت اپنی بہوؤں کو صبح سویرے اٹھا دیا کرتی تھی اور کہتی کہ اٹھو، نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو اور گھر کی صفائی کرو۔ اس کی بہوؤں کو عبادت کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار وہ کر لیا کرتی تھیں۔ یہ سب ان تینوں بہوؤں کو کافی برا لگتا تھا۔ وہ تو بس آپس میں اپنی ساس کی برائیاں کرتی رہتی تھیں، اپنی نیک ساس کو برا بھلا بولتی رہتیں۔ ایک مرتبہ اس نے اپنی بہوؤں سے کہا کہ بیٹا آج کھانا زیادہ بنا لینا، آج میں غریبوں کی دعوت کرنے والی ہوں اور اسی لیے تم تینوں مل کر ان کے لیے کھانا تیار کر لینا۔ دیکھو بیٹا، جب ہم دیتے ہیں تو اللہ پاک بہت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر ان 3 بہوؤں کو کافی غصہ آیا اور وہ کہنے لگے کہ کیا مصیبت ہے ہمارے سر پر۔ وہ تینوں کہنے لگے کہ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہیں، یہ کبھی غریبوں کو بلاتی ہے، کبھی مسکینوں کو بلا لیتی ہے، کبھی بیواؤں کو بلا لیتی ہے۔ اس نیک عورت کی تینوں بہوئیں اس کے بیٹوں کے کان بھرا کرتی تھیں۔ ایک دن وہ نیک عورت اپنے کمرے میں عبادت کرنے کے لیے چلی گئی۔ ایک بولی کہ میں تو اس سے کافی تنگ آ گئی ہوں، پتہ نہیں یہ کب مرے گی۔ دوسری بولی کہ یہ روز روز ہم سے کھانا بنواتی ہے، میری تو ناک میں دم کر رکھا ہے اس نے۔ اور تیسری نمبر والی بہو جو چھوٹی تھی، وہ کہنے لگی میں تو کہتی ہوں کہ یہاں سے چلی ہی جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا۔ ایک دن چھوٹی بہو نے جھوٹ موٹ کی اپنے ہاتھ پر پٹی باندھ لی اور جب شام کو شوہر گھر آیا تو اس کے سامنے رونے لگی۔ شوہر نے بیوی کے ہاتھ کے اوپر پٹی دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا۔ عورت رو کر کہنے لگی کہ آج ماں جی نے 50 لوگوں کا کھانا مجھ سے بنوایا ہے اور سارے گھر کا کام بھی مجھ سے کروایا ہے۔ جھوٹ موٹ کی پٹی باندھ کر کہنے لگی کہ کھانا بناتے وقت میرا ہاتھ جل گیا، اب میں نے اس گھر میں نہیں رہنا، یا تو میری ماں کو کہیں بھیج دے یا مجھے کہیں چھوڑ دے۔ یہ بیٹا اپنی ماں کا اتنا فرمانبردار نہیں تھا، وہ تو اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر فوراً ہی ماں کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ آپ نے ہم بھائیوں کی بیویوں کو نوکرانیاں سمجھ رکھا ہے؟ اتنا ہی شوق ہے اگر عبادت کرنے کا، اتنا ہی شوق صدقہ اور خیرات کرنے کا تو آپ اپنے بھائی کے گھر چلی جائیں، وہاں بیٹھ کر عبادت کیا کریں۔ ماں کا دل یہ بات سن کر تڑپ اٹھا، کہنے لگے کہ بیٹا تم لوگوں کے ہوتے ہوئے اب میں کیا کہیں اور چلی جاؤں؟ بیٹا کہنے لگا کہ جی ہاں، آپ کہیں پر چلی جائیں یا پھر ہم چلے جاتے ہیں۔ ماں نے چھوٹے بیٹے کی بات سن کر بڑے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ بھی اپنی بیوی کی زبان بول رہا تھا، کہنے لگا کہ کبھی مسکینوں کو بلاتی ہیں تو کبھی غریبوں کو بلا لیتی ہیں اور کھانا کھلاتی ہو، اور پھر اتنا سارا کھانا آپ ہماری بیویوں سے ہی بنواتی ہو۔ آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ اپنے بھائی کے گھر چلی جائیں، آپ وہاں جا کر صدقہ خیرات کرو، وہاں پر بیٹھ کر عبادت کرو۔ ماں نے دیکھا کہ اس کے سارے بیٹے اپنی بیویوں کی تابعداری کر رہے ہیں اور میری تکلیف انہیں نظر نہیں آ رہی۔ بیٹوں کو یہی لگ رہا تھا کہ ماں اپنے بھائی کے گھر جا رہی ہے۔ ماں نے اپنے کپڑے اٹھائے اور چل پڑی۔
वो कहाँ जा रही थी किसी को कुछ नहीं पता था। इसको खुद को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो अपने भाई के घर पर नहीं जा रही थी। वो बल्ला वजह अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भाई दीन के कामों में और तबलीग में काफ़ी मसरूफ़ रहता था। वो बूढ़ी औरत चलती जा रही थी कि रास्ते में एक नौजवान आया और कहने लगा कि माँ जी आप कहाँ जा रही हैं। वो बूढ़ी औरत बोली कि बेटा मंजिल की तलाश में हूँ और सफ़र पर निकली हुई हूँ। नौजवान बोला कि लगता है कि माँ जी आप अकेली हैं, आपके साथ कोई नहीं है। ये सुनकर वो औरत खामोश हो गई। नौजवान बोला कि कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे साथ आएं और मेरे घर पर रहें। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। इस तरह वो नेक नौजवान इस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आता है। घर छोटा था लेकिन सुकून वाला था। नेक औरत बोली कि बेटा तुम अकेले रहते हो? नौजवान बोला कि जी माँ जी मैं अकेला हूँ, लेकिन आज से आप ही मेरी माँ हैं। इस बूढ़ी औरत ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और कहने लगी कि बेटा मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। नौजवान बूढ़ी औरत को कमरे में ले गया और कहने लगा कि आज से ये कमरा आपका ही है, आप यहाँ पर जितनी चाहे इबादत कीजिए। बूढ़ी औरत सोचने लगी कि नौजवान होते हुए भी कितना नेक है और इबादत करता है। वो नेक नौजवान घर में भी हिफाजत करता था और कभी कभार घर से बाहर भी निकल जाता था। वो बूढ़ी औरत इस लड़के से कुछ नहीं पूछती थी, ये सोच कर कि जिस माँ को उसके बेटों ने घर से निकाल दिया हो वो भला दूसरों से कैसे कोई सवाल कर सकती है। और वो औरत अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि ए अल्लाह तो जानता है कि मैं गरीब हूँ, मसकीनों को खाना खिलाती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटों का तुझसे कोई शिकवा भी नहीं करती, बस दिल में इस बात पर उदास हूँ कि मैं यहाँ पर किसी को खाना नहीं खिला सकती। ए अल्लाह तो मुझे किसी का मोहताज ना करना, हमेशा अपने खजाने से अता करना। बस वो यही सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। औरत ने दरवाज़ा खोला तो सामने फ़कीर बच्चे थे। औरत ने बोला कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बच्चे बोले कि हमें पता चला है कि यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत बोली कि बच्चों मैंने तो खाना नहीं बनाया और मेरे पास तो खाना भी नहीं है। बच्चे बोले कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बाहर जाकर देखिए, बड़े बड़े देगों में खाना बन रहा है। नेक औरत ने बाहर आकर देखा तो सच में बड़ी बड़ी देगों में खाना बनाया जा रहा था। वो खाना कौन पका रहा था इस बात का किसी को कुछ नहीं पता था। वो नौजवान भी वहां पर मौजूद नहीं था। बूढ़ी औरत ने उन बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि ए मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो इस बारे में सोच ही रही थी और आपने मेरी दुआ कबूल कर ली। बूढ़ी औरत को लगा कि शायद दस्तरख्वान एक दिन के लिए ही लगाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब भी वो फजर की नमाज पढ़ के उठती तो दस्तरख्वान लगा होता था। बड़ी बड़ी देगों में खाना बिन रहा होता था और बच्चे, बूढ़े, औरतें, यतीम, मिस्कीन सभी खाना खा रहे होते थे। जब खाना बिन रहा होता था तो वो नेक नौजवान वहां पर मौजूद नहीं होता था, जिसकी वजह से वो औरत खामोश थी। उसने किसी से भी नहीं पूछा कि ये खाना कौन बनाता है और कहाँ से आता है। इस बात का चर्चा हर तरफ हो गया, हर गांव में हो गया और इस गांव में भी हो गया जहां पर इस औरत के 3 बेटे रहा करते थे। इसकी बहवे आपस में बात करने लगे कि जंगल में एक ऐसा घर है जहां पर हर वक्त खाना बनता रहता है और वहां पर लोग खाना खाते हैं जिनके घरों में खाना नहीं होता, जो गरीब होते हैं, मिस्कीन होते हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, फकीर सभी वहां पर खाना खाते हैं। वो आपस में कहने लगे कि हम भी तो देख कर आते हैं कि कौन इतना अमीर है जो रोजाना दस्तरख्वान लगाता है। एक दिन वो अपने शौहर से छपकर उसे बना बताए वहां से चली गईं। तीनों बहुएं जब आए तो एक छोटा सा घर था और सामने दस्तरख्वान लगा हुआ था। बड़ी बड़ी देगों में खाना बिन रहा था। इस घर में कौन मौजूद था ये तीनों बहुएं नहीं जानती थीं। इन तीनों औरतों को भी खाना खाने के लिए बुलाया गया। इन तीनों औरतों ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगे कि ये सदक़े का खाना हम या गरीब थोड़ी ना है। उनको बुलाने वाली कोई बेवा औरत थी, कहने लगी कि ऐसा नहीं है, ये खाना काफ़ी शिफा वाला है, इस खाने को जो भी खाता है शिफायाब हो जाता है। इनमें से एक बहू बोली कि हम तो उन बातों पर यकीन नहीं रखते। दूसरी बोली कि हमने बड़ी मुश्किल से अपनी सास से जान छुड़वाई है। तीसरी बोली कि ये तो बताओ कि ये घर किसका है, दिखने में तो ये घर काफ़ी अमीर लोगों का नज़र आता है।
बेवा औरत बोली कि यहाँ पर एक औरत रहती है जो गरीब, मिस्कीन, फकीरों को खाना खिलाती है। जब बहुओं ने ये सुना तो वो डर गई, कहने लगे कि कहीं हमारी सास तो नहीं है यहाँ पर जो यहाँ आकर भी गरीब और मसकीनों को खाना खिला रही हैं। पर वो सोचने लगे कि वो तो अपने भाई के घर में चली गई थी। इन्होंने कहा कि आओ घर के अंदर देखते हैं। वो तीनों घर के अंदर आए और एक बुजुर्ग थे जो वहां पर बैठे हुए इबादत कर रहे थे। उनका चेहरा काफी नूरानी था, उनके चेहरे पर काफी नूर था। वो तीनों औरतें बुजुर्ग को देखकर कांप गईं। बुजुर्ग ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? औरतें बोली कि कोई भी नहीं, हम तो बस यहाँ बोला तो किया। आप इन तीनों ने एक जबान होकर सफेद झूठ बोल दिया कि जी जी खाना खा लिया है। बाहर आकर छोटी वाली बहू बोली कि मैं तो डर ही गई थी कि कहीं हमारी सास ही ना हो, पर ये तो कोई बुजुर्ग है जो इबादत कर रहे हैं। वो एक दूसरे से बात करने लगे और अपनी सास का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी सास ने हमें इतना तंग कर रखा था कि हमारे जहन से उसका ख्याल ही नहीं जाता। अच्छा हवा कि वो हमें नहीं मिली और हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। पता नहीं कौन से खैरात वाला खाना है और किस तरह ये लोग खाना खा लेते हैं। वो उसी तरह मुसलसल अपनी सास की बुराइयां कर रही थी और सदका और खैरात को बुरा भला कह रही थी। उनमें से एक ने कहा कि देखो मुझे क्या हो रहा है। इसके साथ वाली लड़की ने देखा तो उसका जिस्म बदल रहा था और इतने में ही दूसरी दोनों लड़कियों का भी जिस्म बदलने लगा। देखते ही देखते वो तीनों जानवर बन गईं। नाज़रीन, कहा जाता है कि वो औरतें कती बिन गई थीं। उसी हालत में वो अपने घर पहुंचे। उनकी जबानें भी कुत्ते की तरह हो गई थीं। आगे शौहर डंडा लिए बैठे हुए थे कि कहाँ चली गई थीं। वो तीनों कती बनी हुई औरतें सामने आ गईं। शौहर ने डंडे मार मार कर भगा दिया। वो डरी सहमी हुई किसी दीवार के पास आकर छप गईं। अब वो तीनों औरतें बैठकर रोने लगे कि हम कती कैसे बन गई हैं, और अंदर से उनके शौहरों की आवाजें आ रही थीं कि ना जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। ये सुनकर वो तीनों औरतें शौहर के सामने दोबारा आ गईं। उनके शौहर ने फिर से डंडे उठाए और उनको मारने लगे। इसलिए अब वो मजबूर होकर अपने शौहर के सामने भी नहीं आ रही थीं। जब वो तीनों इंसान से कती बिन गईं तो उनको एहसास हुआ कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या दर्जा दिया है, और वहां पर वो तीनों भाई बैठे परेशान हो रहे थे कि ना जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। अपनी माँ की तो जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन बीवियों की परवाह कर रहे थे। उसी तरह कई दिन गुजर गए। उसी तरह वो औरतें कती बनी हुई हालत में घूम रही थीं। भूखी भी उसी दर बदर की ठोकरें खा रही थीं। उनको खाने को कहीं नहीं मिल रहा था, ना ही पीने को कुछ मिल रहा था। वो अपने घर भी नहीं जा सकती थीं क्योंकि उनके शौहर उनको डंडे मार रहे थे। जब वो तंग आ गईं तो कहने लगे कि आओ उसी जगह पर चलते हैं जहां पर खाना बनता है, गरीब, यतीम, मिस्कीन, बीवाओं को खाना खिलाया जाता है। आओ हम भी वहां जाकर खाना खाते हैं। जब वहां पर पहुंचे तो देखा कि अब भी वहां पर खाना खिलाया जा रहा था। गरीबों ने कुत्तों को देखा तो डंडे मारकर वहां से भगा दिया। वापस आकर खाना खाने की दोबारा कोशिश की। अब उनको एहसास और पछतावा हो रहा था कि जो सुलूक वो गरीबों यतीमों के साथ कर रही थीं अब खुद उनके साथ हो रहा था। इतने में ही वो नौजवान आया और कहने लगा कि लगता है कि तुम तीनों को भूख लगी है, मगर ये खाना उनके लिए नहीं है जिनके दिल में रहम नहीं होता। तुम तीनों के दिल में रहम नहीं है, दर्द नहीं है। नौजवान बोला कि मैं जानता हूं कि तुम तीनों कभी इंसान हवा करती थीं। तुम लोगों ने हर शख्स के साथ बुरा सलूक किया और तुमने एक बूढ़ी औरत का भी दिल दिखा चुके हो। ये तुम्हारी शक्ल ऐसे ही आमाल की वजह से बदली है। वो लड़का इन तीनों को कहने लगा कि चलो मेरे साथ। वो बुजुर्ग इबादत कर रहे को देखकर मुस्कुराए, इन तीनों की तरफ देखा और कहा कि तुम तीनों ने इस दिन खाना खाया होता जिस दिन अल्लाह के नाम पर खाना खिलाया जा रहा था। तुम दिनों ने अकड़बाजी ना की होती तो आज तुम लोगों का ये हाल ना होता। अल्लाह ताला की राह में खाना खिलाया जा रहा था, तुम तीनों ने क्यों नफरत की? तुम तीनों को अल्लाह ताला की राह में दिया हुआ खाना पसंद नहीं था, अल्लाह की राह में दी हुई खैरात पसंद नहीं थी, सदका पसंद नहीं था, और जो गरीबों को, मसकीनों को, बीवाओं को खाना खिलाती थी तुम लोगों ने उसको भी घर से निकाल दिया। वो तीनों ये बातें सुनकर बस आंसू बहाए जा रही थीं और वो कर भी क्या सकती थीं, बोल तो सकती नहीं थीं। अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से तुम तीनों इंसान की तरह बोलने लग जाओ। तो वो तीनों औरतें इंसान की तरह बोलने लग गईं।
तीनों औरतें एक ज़बान होकर बोलीं कि हम जानते हैं कि हमने अपनी सास का दिल दिखाया है, उसको घर से निकाल दिया है, हम तीनों इससे हसद करती थीं, इससे जलती थीं। वो बुजुर्ग बोले कि तुम दिनों ने इस नेक औरत का दिल दिखाया, इसके बेटों को उसके खिलाफ बहकाया है। वो तीन आपके पास नहीं आई। बुजुर्ग बोले कि नहीं, वो मेरे पास नहीं आई थी और वो मेरे पास आ भी नहीं सकती थी, वो खौदादार औरत है, और जब मुझे अपनी बहन के बारे में इल्म हुआ तो मैंने अपनी बहन के पास अपने एक खास आदमी को भेजा जो इसकी बेटों की तरह मदद करता रहा और इसका ख्याल रखता रहा। मुझे अपने इल्म के जरिए ये पता चल चुका था कि तुम तीनों ने मेरी बहन को बेहक करके उसको घर से निकलवा दिया है, और तुम तीनों सोचती हो ना कि मेरी बहन के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं, वो इतना खाना बनाकर कैसे तकसीम कर देती है। जब कोई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की राह में एक पैसा खर्च करता है तो इसके बदले अल्लाह ताला 10 गुना उसे ज्यादा अता करता है। ये भी अल्लाह ताला का करम है, और ये जो तुम्हारा हाल हुआ है इसमें इसकी कोई बद्दुआ शामिल नहीं है। अगर तुम इस दिन खाना खा लेती, गुरूर तकब्बुर ना करती और अल्लाह की राह पर दिए हुए खाने पे नफरत ना करती तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। गुरूर तकब्बुर तुम तीनों ने किया, और गुरूर तकब्बुर ही शैतान ने किया था, जिसको अल्लाह पाक औरतें फूट फूट हमें एक बार अपनी माँ जी से मलवा दीजिए, हम उनसे माफ़ी मांगना चाहती हैं। हमें कती बनकर पता चला है कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या मर्तबा अता किया है। इतने में ही वो बूढ़ी औरत आ गई। वो तीनों कती बनी हुई औरतें अपनी सास के कदमों में गिर गईं और रो रो कर माफ़ी मांगने लगे कि माँ जी हमें मुआफ़ कर दीजिए, बस एक बार हमें मुआफ़ कर दीजिए। औरत बोली कि बेटा, मैंने तुम लोगों के लिए कभी भी बद दुआ नहीं की, और बेटा मुआफ़ करना ना करना ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है, और सदका और खैरात इंसान को बड़ी बड़ी बीमारियों और मुश्किलों से बचा लेता है। बेटा, मैं तो तुम लोगों के लिए ही ऐसा करती थी कि मेरे बच्चे मेरे बहुएं इन बीमारियों से, उन मुश्किलों से हमेशा बचे रहीं। वो तीनों औरतें कहने लगे कि माँ जी बस आप हमें मुआफ़ कर दीजिए, हमें इस बात की खुशी होगी कि आपने हमें मुआफ़ कर दिया है, भले हम उसी शक्ल में रही, बस आप हमें मुआफ़ कर दें। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें मुआफ़ कर दिया है। वो मुआफ़ कर दिया है। वो तीनों औरतें वहां से जाने लगे तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा रुको, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। बूढ़ी औरत के भाई दुआ करें कि अल्लाह पाक इन्हें फिर से इंसान बना दे। अल्लाह वाले बोले कि नहीं, अभी नहीं, तुम तीनों जाओ और अपने शौहरों को यहाँ पर बल्ला कर लाओ। वो तीनों औरतें अपने शौहरों के पास चली गईं। पहले तो शौहर डंडा लेकर मारने के लिए भागे, लेकिन जब वो बोल उठे तो उनको पता चला कि ये तो हमारी बीवियां हैं। इन तीनों औरतों ने अपने शौहर को बताया और वो अपने शौहर को लेकर वहां पर आ गए। बेटे अपनी माँ को देखकर काफी शर्मिंदा हो रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि तुम तीनों ने अपनी माँ के साथ किया। बेटे तो माँओं का ख्याल रखते हैं, और बुरा तुम तीनों के साथ भी हो सकता था, लेकिन तुम्हारी माँ के सदक़े खैरात ने तुम्हें बचा लिया। वो तीनों बेटे अपनी माँ के सामने रोकर माफ़ी मांगने लगे। नेक औरत बोली कि बेटा, मैंने तो तुम लोगों को पहले ही मुआफ़ कर दिया है। इस औरत ने अपने बेटों और बहुओं को मुआफ़ कर दिया और फिर अपने भाई को बोला कि आप भी उनको मुआफ़ कर दें और उनके हक़ में अल्लाह ताला से दुआ करें। बुजुर्ग ने उनके हक़ में अल्लाह ताला से दुआ की कि ए अल्लाह, ये तीनों औरतें अपने गुनाहों की वजह से इस हाल में हैं। बुजुर्ग की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने उनको कती से इंसान बना दिया। तीनों बहुओं ने अपनी सास का हाथ पकड़ा और कहा कि चलिए माँ जी, अपने घर में चलें। वो आपका ही घर है, हमसे पहले इस पर आपका हक है। आपने ही इसको बसाया है और आप ही हमें ब्याह कर यहाँ पर लाई थीं, और हम सब मिलकर पूरे गांव में खाना खिलाएंगे और अल्लाह की राह में खैरात करेंगे। बेशक अल्लाह पाक की राह में दिया हुआ 10 गुनाह होकर इंसान की तरफ दोबारा पलटकर ज़रूर आता है, और सदका खैरात इंसान की तरफ आने वाली मुश्किल, परेशानियों और आजमाइशों को टाल देता है। उसीलिए हमेशा सदका और खैरात ज़रूर किया करें, क्योंकि सदका खैरात करने से इंसान बहुत बड़ी बीमारियों, मुसीबतों और आफतों से बच जाता है, और अल्लाह पाक की राह में भी खर्च करने से अल्लाह पाक अपने बंदे के रिज़्क़ में 10 गुना इजाफा फरमाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नेक आमाल करने की और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।
اگر آپ دوست ہمارے چینل پر نئے ہی اسلامک وائس کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا اور نوٹیفیکیشن کو بھی آل پر کر دیجیے گا۔ ہر